Hello everyone. In the last lecture we have studied about scalar and vector field functions and limit continuity and differentiability of these vector field functions. Now we have the term constant vector. As vector quantities are categorized by two dimensions, their magnitude and direction. So a vector is said to be constant if it has magnitude and direction both as constant, or you can say have a constant magnitude and a fixed direction. Neither of the magnitude is variable nor the direction changes. So now we have some results. Derivative of a constant function is always 0. हमें कोई constant function given है that is r is equal to some c. Also, if we changes r slightly, r plus del r being a constant function, this is also c. So r plus del r minus of r is vector c minus vector c, and that is a 0. So del r is equal to 0, and for slight changes in this limiting case, limit del t tends to 0, del r by del t is also 0. Del t is tending to 0, not actual 0. That means dr by dt is equal to 0. So derivative of a constant vector is always 0. Now we have three main results in the point of examination as well as successive results. First is the necessary and sufficient condition for a vector function f of a scalar variable t to be constant is that its derivative is 0. सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन कि एफ टी क्या होगा, एक कांस्टेंट फंक्शन होगा, एक कांस्टेंट वेक्टर फंक्शन होगा इफ़ एंड ओनली इफ डी एफ बाई डी टी इज़ इक्वल टू 0. दैट मीन्स एफ टी कॉन्स्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा. किसी भी वेक्टर फंक्शन एफ के लिए अगर उसका डेरिवेटिव 0 है तो वो नेसेसरीली क्या होगा, एक कांस्टेंट फंक्शन होगा. फॉर द नेसेसरी पार्ट say condition is necessary. We are given ft is a constant function. Constant function means independent of the variable t. If f has to be written in the component form, then this f1 i cap, f2 j cap एंड f3 k cap. इन जनरल ये हमारे पास क्या थे, t के फंक्शंस थे, पर हमें ft एक कांस्टेंट फंक्शन गिवन है. दैट मीन्स f1 f2 एंड f3 आर इंडिपेंडेंट ऑफ t. इंडिपेंडेंट ऑफ t. सो डिफ्रेंशिएटिंग df बाई डी टी हम क्या करते थे, इसके कंपोनेंट्स को डिफ्रेंशिएट करते थे. df1 बाई डी टी आई कैप प्लस df2 बाई डी टी जे कैप df3 by dt k cap. And since f1 f2 f3 are independent of t, so this is 0. Now the sufficient part, this condition is sufficient to say that ft is a constant function. We are given df by dt is equal to 0. If df by dt is equal to 0, that means इसको हम इसी की कंपोनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं. df1 by dt i cap प्लस df2 by dt j cap plus df3 by dt k cap is given to be a 0 vector. This vector इज इक्वेटेड विद 0 वेक्टर. इसका मतलब क्या है, इसका ईच एंड एवरी डायमेंशन क्या होगा, 0.
that means df1 by dt I cap is equal to 0, df2 by dt j cap is equal to 0, df3 by dt k cap is equal to 0. Since I, j, k are unit vectors, so these are not 0. That means df1 by dt is equal to 0, df2 by dt is equal to 0, and df3 by dt is equal to 0. And now f1, f2, f3 are स्केलर फंक्शंस ऑफ t, और स्केलर फंक्शंस के लिए हमारे पास ये रिजल्ट था कि उसका डेरिवेटिव अगर ज़ीरो है तो f1, f2, f3 आर कॉन्स्टेंट्स और इंडिपेंडेंट ऑफ t. And if f1, f2, f3 are independent of t, that means f is also independent of t. That means f is a constant vector function. F is also independent of t. Okay. Now the second result is for constant magnitude. The necessary and sufficient condition for a vector function f of a scalar variable t to be of constant magnitude. इस बार हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. is f dot df by dt is equal to 0. पहला जो रिजल्ट था वो क्या था कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ वेक्टर फंक्शन f टू बी कांस्टेंट इज दैट इट्स डेरिवेटिव इज 0. और अगर प्रॉपरली बात करें, द necessary and sufficient condition for a vector function f of a scalar variable t to be constant is that df by dt is equal to 0. ठीक है कि अगर कोई कांस्टेंट वेक्टर होगा तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा. अगर किसी वेक्टर फंक्शन के लिए उसका डेरिवेटिव 0 है तो वो नेसेसरली क्या होगा, एक कांस्टेंट वेक्टर होगा. अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की, क्योंकि कांस्टेंट वेक्टर में हमारे पास क्या था, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन इज फिक्स्ड. यहाँ हम बात कर रहे हैं द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ वेक्टर फंक्शन f टू बी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज दैट f डॉट df by dt is equal to 0. So in the necessary part, this condition is necessary. We are given that ft is of constant magnitude. ft का मैग्नीट्यूड हमें क्या गिवन है, that is a constant quantity से c. हमें ये प्रूव करना है कि ये कंडीशन होल्ड करती है, दैट इज़ f डॉट df by dt इज़ इक्वल टू 0. हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ ft को हम मैग्नीट्यूड ऑफ ft स्क्वायर लिख लेते हैं, दैट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ f स्क्वायर विल बी इक्वल टू सम c स्क्वायर. सिंस c इज़ कॉन्स्टेंट, c स्क्वायर इज़ आल्सो अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी. ठीक है, और मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगी. इस मैग्नीट्यूड ऑफ एफ स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एफ डॉट एफ डॉट प्रोडक्ट की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एंड कॉस ऑफ 0, दैट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ एफ स्क्वायर. नाउ इस एंटिटी को आप दोनों तरफ टी के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दीजिए. एफ डॉट डी एफ बाई डी टी प्लस डी एफ बाई डी टी डॉट एफ एंड k बीइंग ए कांस्टेंट स्केलर, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो गया, 0. और सिंपली 2 टाइम्स ऑफ f डॉट डी एफ बाई डी टी इज़ इक्वल टू 0, और वी कैन से f डॉट डी एफ बाई डी टी इज़ इक्वल टू 0 सिंस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0. नाउ द सफिशिएंट पार्ट. वैसे तो आप इसी को अपोजिट सेंस में आर्ग्यू कर सकते हैं कि वी आर गिवन एफ डॉट डी एफ बाई डी टी इज़ इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ, चलिए कर लीजिए, वी आर गिवन एफ डॉट
df by dt is equal to 0. For a certain function f, if this condition holds, then f is necessarily of constant magnitude. f क्या होगा, हमेशा constant magnitude का होगा. इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 into f dot df by dt is equal to 0. इसको रीअरेंज करके हम इस तरह से लिख सकते हैं कि f डॉट डी एफ बाई डी टी प्लस डी एफ बाई डी टी डॉट एफ इज़ इक्वल टू 0. इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक पार्ट यहाँ लिख दिया, एक पार्ट यहाँ लिख दिया, एंड दैट इज़ डी बाई डी टी ऑफ एफ डॉट एफ इज़ इक्वल टू 0. ठीक है. एफ डॉट एफ इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ एफ स्केयर एंड दैट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी इज़ इक्वल टू 0. किसी भी स्केलर के लिए अगर उसका डेरिवेटिव क्या है, 0 है, दैट मीन्स दैट स्केलर इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी. ठीक है. से सम सी और के नाम दे दीजिए इसको. दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, अगर स्केयर ऑफ अ क्वांटिटी कांस्टेंट है तो ओरिजिनल क्वांटिटी भी क्या रही होगी, कांस्टेंट. ओके. Now the next two results are implications of this. If a vector function f of a scalar variable t has a constant magnitude, we are given ft is of constant magnitude, then the necessary and sufficient condition is f dot df by dt is equal to 0. If f is a vector function of scalar variable t with constant magnitude, and provided f and df by dt are not zero vectors, then obviously f and df by dt are orthogonal vectors, since their dot product is 0 by the previous condition. F is given to be of constant magnitude, then this condition holds automatically, and if f and df by dt are not 0, then these two vectors are orthogonal. Next are also, if f is a differentiable vector function of scalar variable t, f is given to be a vector function of scalar variable t which is differentiable, then we are to prove that d by dt of vector function f square is 2 magnitude of f into df by dt. Here on the right hand side all the quantities are scalar quantities, so we are to prove d by dt of f square. F square is written as f dot f, so d by dt of f dot f, and also f square can be written as f dot f, and that is magnitude of f square. Here it denotes normal f as the magnitude of f and arrow headed f as the vector function f. So we have f square can be written as f dot f, and that is magnitude of f square. So now d by dt of f square can be written as f dot f को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, magnitude of f square से, that is d by dt of magnitude of f square, and magnitude of f square is simply, अब ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ t इज़ 2f df by dt. सो यही हमें प्रूव करना था. हमने सिर्फ रीअरेंजमेंट्स की हैं. d by dt ऑफ f डॉट f हमें निकालना था, दैट इज़ d by dt ऑफ f स्क्वेयर. f स्क्वेयर को हम क्या लिख सकते हैं, f डॉट f, एंड f डॉट f को हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ f स्क्वेयर. सो दिस f डॉट f कैन बी रिप्लेस्ड बाय f स्क्वेयर, और अब f स्क्वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ f दैट इज़ ए स्केलर फंक्शन, उसको सिंपली हम 2f df बाई dt डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ द रिजल्ट ऑन द डायरेक्शन. दो मेन रिजल्ट्स हमने किए कि कोई भी वेक्टर फंक्शन कांस्टेंट होगा इफ़ एंड ओनली इफ इट्स डेरिवेटिव इज 0, और यू कैन से द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ वेक्टर फंक्शन f टू बी कांस्टेंट इज दैट df by dt इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट हमने पढ़ा कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट a vector function f of a scalar variable t will have a constant magnitude is that f dot df by dt is equal to 0. On the same line we have the necessary and sufficient condition.
the necessary and sufficient condition for a vector function f of scalar variable t to have a constant direction. इस बार हम क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट या फिक्स डायरेक्शन. इज दैट एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो. इन रिजल्ट्स को अगर आप इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ आएगा कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ अ स्केलर वेरिएबल टी टू बी कांस्टेंट. कांस्टेंट का मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, उसकी डायरेक्शन भी फिक्स. इज दैट इट्स डेरिवेटिव इज ज़ीरो, डी एफ बाई डी टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो. यानी अगर कोई कांस्टेंट वेक्टर है तो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो, और किसी भी वेक्टर फंक्शन के लिए अगर डेरिवेटिव ज़ीरो तो वो वेक्टर फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा. सेकेंड रिजल्ट, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ वेक्टर फंक्शन एफ टी to have constant magnitude is that f dot df by dt is equal to 0. And the necessary and sufficient condition for a vector function ft to have fixed direction is that f cross df by dt is equal to 0. So we are to prove the necessary and sufficient condition for a vector function f of a scalar variable to have a fixed direction is that f cross df by dt. So now we will express this vector function f in terms of its magnitude and its direction vector. So let us f is equal to magnitude of f and some f cap. कंफ्यूज मत करना. f इज़ अ वेक्टर फंक्शन विद मैग्नीट्यूड f एंड डायरेक्शन f कैप. सो नाउ वी आर डिफरेंशिएटिंग df by dt. We have studied the differentiation algebra, that is d by dt of phi f, where phi is a scalar function and f is a vector function, is given by d phi by dt being a scalar multiplied by this vector f plus phi as it is df by dt. So applying the same on this scalar, that is magnitude of f, and this is the unit vector, is that df by dt as a scalar quantity, f cap as it is plus इस बार f as it is df by dt. Now the necessary part, we are given the condition is this f cross df by dt. So in the necessary part, the condition is given to be f cross df by dt. So we vectorly pre-multiply this entity f cross df by dt by f. So we have on the left f cross df by dt is equal to df by dt as the scalar quantity, उसको आप बाहर रख सकते हैं, that is f cross unit vector f plus f being scalar उसको आप बाहर रख सकते हैं, vector f cross df by dt. f cross df by dt. So we are to prove that ft is of constant direction. एंड हमें प्रूव क्या करना है कि f क्रॉस df by dt is equal to 0. For this we simplify this relation
we have f cross df by dt is equal to, now वेक्टर फंक्शन f उसको हम क्या लिख सकते हैं, f इंटू एफ. सो दिस इज़ df बाई dt एज द स्केलर, ये आपका एज इट इज़. f को हमने फिर से एक्सप्रेस कर दिया किसकी टर्म्स में, f इज़ आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी इंटू वेक्टर फंक्शन f क्रॉस f कैप क्रॉस f कैप. सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो प्लस. इसी तरह से स्केलर f बाहर था, इस वेक्टर फंक्शन f को हम क्या लिख सकते हैं फिर से, f इंटू एफ कैप. तो f स्केलर हमने बाहर ले लिया, दैट इज़ f स्क्वेयर इंटू एफ कैप क्रॉस डी एफ कैप बाई डी टी. ओके, नाउ सिंस द डायरेक्शन इज़ फिक्स्ड का मतलब ये जो यूनिट वेक्टर है ये क्या है, फिक्स डायरेक्शन रखता है. एंड बीइंग द यूनिट वेक्टर इट इज़ आल्सो ऑफ फिक्स कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा, यूनिट. एंड द डायरेक्शन इज़ गिवन टू बी फिक्स्ड, दैट मीन्स एफ कैप इज़ अ वेक्टर ऑफ यूनिट मॉडुलस एंड फिक्स डायरेक्शन, दैट इज़ अ कांस्टेंट मॉडुलस एंड फिक्स डायरेक्शन. तो इसका मतलब वो वेक्टर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है. बाय द रिलेशन एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी इज़ एफ स्क्वेयर इंटू एफ कैप क्रॉस डी एफ बाई डी टी. यहाँ एफ कैप की हम बात कर रहे हैं, सिंस एफ कैप इज़ ऑफ यूनिट मॉडुलस एंड कांस्टेंट डायरेक्शन इज़ अ कांस्टेंट वेक्टर, और कांस्टेंट वेक्टर है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ज़ीरो. एफ क्रॉस ए ज़ीरो वेक्टर इज़ ए ज़ीरो वेक्टर. सो इन द नेसेसरी पार्ट वी आर गिवन दैट एफ टी इज़ ऑफ कांस्टेंट डायरेक्शन, और अगर वो कांस्टेंट डायरेक्शन का है इसका मतलब ये जो डायरेक्शन वेक्टर है, एफ का जो डायरेक्शन वेक्टर हम अज्यूम करके चले थे वो क्या है, एक फिक्स डायरेक्शन में है. ठीक है, और साथ के साथ बीइंग अ यूनिट वेक्टर वो क्या है, एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का भी वेक्टर है. सो वी हैव एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो. नाउ इन दी सफिशिएंट पार्ट वी आर गिवन दैट एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो. नाउ द कंडीशन इज sufficient, that means we are given that f cross df by dt is equal to 0. तो ये कंडीशन सफिशिएंट है इस बात के लिए कि f will have a constant direction और fixed direction. ये हमें प्रूव करना है. क्लियर है, ये हम लेके चलें कि f क्रॉस डी एफ बाई डी टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो. अभी अभी हमने रिलेशन निकाला था कि f क्रॉस डी एफ बाई डी टी विल बी इक्वल टू एफ स्क्वेयर इंटू एफ कैप क्रॉस डी एफ कैप बाई डी टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो. ये दोनों हमने रिलेट किए थे. बाय दिस रिलेशन वी हैव एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी इज़ इक्वल टू डी एफ बाई डी टी इंटू एफ क्रॉस एफ प्लस एफ इंटू एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी. ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई होके हमारा क्या आ गया था, एफ स्क्वेयर इंटू एफ कैप क्रॉस df by dt, and we are given that f cross df by dt is equal to 0. So this entity will be equal to 0. f square is magnitude of f, that is a scalar quantity, उसको आप उस तरफ ले जा सकते हैं. that means f cap cross df cap by dt is equal to 0. now f cap is a unit vector. यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट, दैट इज़ यूनिट. अभी अभी हमने रिजल्ट पढ़ा था कि कोई भी वेक्टर अगर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है देन दिस कंडीशन नेसेसरली होल्ड्स, दैट इज़ एफ कैप डॉट डी एफ कैप बाई डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो. नाउ f dot df by dt is equal to 0 says that f and df by dt are orthogonal. Now f cross df by dt is equal to 0 says that f and df
by dt are parallel. These two conditions cannot hold simultaneously कि f हमारे df by dt के ऑर्थोगोनल भी है और f df by dt के पैरेलल भी है, और f हम कोई भी आर्बिट्रेरी वेक्टर लेके चले थे दैट इज़ नॉट आइडेंटिकली ज़ीरो वेक्टर, दैट मीन्स df कैप बाई dt मस्ट बी ज़ीरो। देखिए इन दोनों कंडीशन से हम बात कर रहे हैं, से फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट कंडीशन से f क्रॉस df बाई dt इज़ इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स आइदर f इज़ इक्वल टू ज़ीरो और df बाई dt इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और f और df बाई dt आर पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, उन दोनों कंडीशंस को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे कि f भी ज़ीरो नहीं है और df बाई dt भी ज़ीरो नहीं है, देन आइदर f इज़ पैरेलल टू df बाई dt, और सेकेंड कंडीशन से वो क्या है, f इज़ परपेंडिकुलर टू df बाई dt। ये दोनों कंडीशंस हमारी होल्ड कर रही, दैट मीन्स f इज़ पैरेलल टू df बाई dt एंड f इज़ ऑर्थोगोनल टू df बाई dt। ये नहीं हो सकता कि ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल भी हों और ऑर्थोगोनल भी हों, दैट मीन्स वन ऑफ द वेक्टर्स ऑफ दीज पेयर वो आपके पास क्या है, ज़ीरो। f इज़ नॉट आइडेंटिकली ज़ीरो क्योंकि f कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन था, वो हर समय ज़ीरो नहीं होगा, दैट मीन्स df बाई dt मस्ट बी ज़ीरो। df कैप बाई dt इज़ इक्वल टू ज़ीरो, किसी वेक्टर का डेरिवेटिव अगर ज़ीरो है इसका मतलब f कैप क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है। वो पहले ही कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का था बीइंग अ यूनिट वेक्टर, और कांस्टेंट वेक्टर होने से वो क्या हो गया आपके पास, एक फिक्स्ड डायरेक्शन का वेक्टर। सो f कैप इज़ आल्सो फिक्स, direction of f cap is also fixed. So the necessary and sufficient condition for a vector function to be of a fixed direction is that f cross df by dt is equal to 0.